Whiteboard? Yes, sir. Okay, fine. So first of all, can you let me know what is triangle? What is triangle? Tell me. Three. Just give me a second. Three-sided Just give me a second. Just give me a second. Yeah, can you hear me? Can you hear me, Yes. guys? Okay, actually, my family members was talking. Okay, fine. So I was talking. What is triangle? It's a three-sided figure. Okay, three-sided figure. That's great. So just give me a second. I will draw a triangle for you. So this is the triangle, right? Yes, sir. Sana, is it a triangle? Can you see? Yes, sir. Okay. तो ट्राइंगल जी आपको दिख गया. इस ट्राइंगल में क्या क्या दिख रहा है? What you can see in the triangle? Three sides and three angles. Three sides and three angles. Anything else? No. Vertex नाम का कोई चीज होता है? Yes. क्या होता है vertex? What is vertex? Hello? Hello? The vertex is the corner. The But corners. The corners are known as vertex. तो सबसे पहले congruency of triangle सीखने से पहले हमें एक triangle के बारे में जानना चाहिए कि एक triangle में क्या क्या चीजें होती हैं. Right? So here in the triangle you can see these are, I will just write down here, these are what? These are the sides. I will write down here A, B, B, C, and AC are called sides. Is this clear? Now, yes, sir. म्यूट नहीं किया करो, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ. This Okay. angle, and this angle. तो एक ट्रायंगल में तीन एंगल भी होते हैं, right? Yes, sir. Okay, and we have vertex, vertex A, vertex B, vertex C भी होता है, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. उसके बाद चलते हैं हम ट्रायंगल समझ गए. What is the triangle? Now we will learn. Okay. Now we will learn what is congruency of triangle. What is congruency? So first of all, I would like to tell you what is congruent figure. What is congruent figure? So do you have any idea, guys? So we've done this, but I don't really remember. कोई बात नहीं, जो याद है आप वो बताओ. Sir, I think the sides are equal or something. Okay. Anything else? No, sir. No. Okay. So they basically have the same sides. I think that's what it was. Okay. Good example. Okay. और कुछ कोई बताना चाहेगा? No, sir. I don't ओके know. ओके. देखिए दो वर्ड आती है. ओके, आप लोग के लाइफ में टू वर्ड्स आएंगी. एक आएगी कॉन्ग्रुएंट. क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट. एंड एक आएगा सिमिलर. एक आएगा क्या? सिमिलर. Similar. ठीक है, याद रखिएगा मैथ्स में सिमिलर अभी नहीं पढ़ना है. ठीक है,
अभी नहीं पढ़ना, बट आपकी मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में आएगा, मीन्स आगे चल के नेक्स्ट क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ना है हमें. सो लगता दोनों सेम ही टाइप का है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल लेट यू नो. कॉन्ग्रुएंट मीन्स all things. Congruent means all things are equal. All things are what? Equal. Exactly equal. Exactly equal. Exactly equal कहने का मतलब कि एकदम से equal. ये नहीं कि हाँ चलो दिखता वैसा है, नहीं. It should be equal. Exactly equal. मतलब identical चीजें जो होती हैं, that is known as, आप इसको another word में आप कह सकते हो identical. क्या बोल सकते हो? Identical. Is that clear? Yes, sir. Similar. Okay, मैं काम करता हूँ, मैं एक example भी यहाँ दे देता हूँ, so you will understand better. What I have drawn, guys? A square. A square, right? And here I'm just showing you. I have drawn another one. Can you see that? Yes, sir. 2 squares I have drawn. Sana, can you see this? Yes, sir. If I will take one square, red और blue है, right? किसी एक को उठाओ और देखो कैसे मैं इसके ऊपर बिठा दे रहा हूँ. So they're always equal. They're Exactly वो पूरे शेप को ये फुलफिल कर गया, फुल कर गया, उसमें बैठ गया, राइट? बैठ गया मीन्स कि एग्जैक्टली जाके इक्वली सारे साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, तो उसकी पोजीशन को फुल कर लेगा, राइट? सेम उसी तरीके से आप ये देखो, ये ब्लू वाला रेड के अंदर बैठ जाएगा पूरा का पूरा. कैन यू सी दैट? Yes, sir. So these are equal. These are what? Equal. So we can say these congruent. I'm not talking about triangle. I'm just talking congruent, right? So we can say these are congruent. और अगर square है, so we can say congruent square. कोई problem इसमें? Yes, sir. Okay. Next, what we have, similar word. The word comes similar. Okay, I will take one example. Another same example. Can you see this? Guys, can you hear me? Yes, sir. Okay. इसमें आप देखो. Okay, I will use a different color. Okay, guys. So you can see here, I have used blue and red square right now. Correct? But Yeah. are they equal? No, sir. They're different. They looks same. They looks same, but These are different. size are. Oh, what happened with my pen? Give me a second. Something happened with my pen. These gives me problem these days. Give me a second. Yeah, but the size are different. So if the size is different, what we can say? They are similar triangle. What we can say that? They are similar triangle. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, दोनों का सिंबल अलग होता है, दोनों का सिंबल अलग होता है. यहां ध्यान से देखो, कॉन्ग्रुएंट अगर मुझे बताना है, कॉन्ग्रुएंट अगर मुझे बताना है, तो मैं इस सिंबल का यूज करूंगा. कैन यू सी दैट? मतलब Yes, sir. स्क्वायर वन इज, इस सिंबल का मतलब हो गया स्क्वायर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द स्क्वायर टू. आपको देखो क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो होता है इक्वल साइन और ऊपर में ये ऐसे. कैन यू सी दिस सिंबल? अगर कहीं भी लग जाता है, so that means we are talking congruent. And congruent का मतलब होता है exactly equal. इस बात को माइंड में बिठा लो. बैठ गया माइंड में? Yes, sir. सिंबल बैठ गया,
Yes, sir. अच्छा, सिमिलर का सिंबल कैसा होगा फिर? तो सिमिलर के सिंबल में ऐसा होता है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. So it's basically the same thing as congruent, except instead of the equals to, it's the same sign again. राइट, मतलब इसमें इक्वल साइन नहीं होगा, इसमें इस तरह से साइन होते हैं which represent similar, which represent what? Similar. Similar. Is that clear with you? Yes, sir. तो अब आप एक काम करो, आप ये क्या सिमिलर है क्या कॉन्ग्रुएंट है, इसको विद फिगर बना लो जल्दी से। Okay, sir. दोनों का डिफरेंस समझ आया कि कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, सिमिलर किसको बोलते हैं, राइट? हम ट्रायंगल्स पे चलेंगे, डोंट वरी, पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। So Sana, can you tell me what is congruent? Something that is exactly the same. Exactly same, right? And Anika, what about the similar? This like the shape is same, but the sides are different. Yes, shape is same, the looks same, but size is different. Can you just wait for one more minute? Huh? Can you just wait for one? I'm done. Okay, done. Okay, I'm moving this page. Okay, note down this part. अच्छा हाँ, एक सेकंड और, very important thing. So done. Done, sir. Give me a second. एक सेकंड रुक जाओ, आपका इसमें ये भी है ना, रिड्यूस सिलेबस भी है ना इसमें, तो इस चैप्टर में, डू यू नो दैट? Yes. Yes, sir. क्या हुआ सना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या सना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बट लग रहा है आवाज से कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी, कोई बात है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? सर नींद आ रही है। नींद आ रही है तो जाओ पानी पी के आओ पहले, और आंखों में पानी मार के आओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी जाओ जल्दी आओ। ओके सर। हाँ, क्योंकि सोने से फायदा नहीं है, पढ़ लो फिर सो जाना आराम से। सर आई एम बैक। ओके दैट्स फाइन, ओके ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे यार, इसमें कहाँ से निकाला, गिव मी अ सेकंड। इसमें एक्चुअली क्या है, आपका सिलेबस जो था वो रिवाइज्ड हुआ था, okay, chalo, I will let you know further, okay? So we will see. Now we have to learn about congruency of triangle, right? So what does it mean exactly? I will let you know right now. Give me a second. Can you hear me?
guys? Yes. ओके ओके फाइन. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं, और what are the congruent triangle you can say, we are going to look into it. So can you see, Anika, can you read this please? Yes, two triangles are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other as to cover it exactly. Thus, congruent triangles are exactly identical. Example 1. If triangle ABC is congruent to triangle DEF, then we have angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. ठीक है, उसको रहने दीजिए, उसको अभी मत देखिए. सो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन व्हाट क्या होगा, one of them can made to superimpose to other, which will cover exactly, right? So I'm just, oh sorry, मैं एक इमेज यहाँ अपलोड करने जा रहा हूँ. ओके, and I will explain little more in this, what does it mean. Can you show that image once again for yes us? yes पुराना वाला. Yes, sir. ओके, आप बस ऊपर का सेंटेंस नोट कर लो, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हो गया नोट? Yes, sir. ओके, चलो अभी यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलता ये है कि एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर रख दो तो वो कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए, राइट? उससे क्या Yes, मालूम sir. चलेगा हमें, सुपर इम्पोज हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दे आर सेम साइज एंड सेम शेप, राइट? मींस सेम शेप का भी होना चाहिए और उसका साइज भी एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, करेक्ट? ओके, Yes. तो अब देखो कहानी इसमें ये है कि इफ एनीबडी सेज दैट एंगल A is equals to angle R, ये देखो रेड से मार्किंग कर रखा है इन्होंने, कैन यू सी दैट गाइस, रेड से. देन एंगल B is equals to angle Q and angle C is equals to angle P. Okay, then we can say they are congruent. Otherwise, अगर आप angles पे नहीं देखते तो they have so many rules. They have what? So many rules. तो देखो सिंपल सी बात ये होती है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, साइड्स की एंड एंगल्स की. Based on the sides and the angles, we will prove the triangles are congruent. तो अगर उल्टा सोचो, can you hear me guys? Yes, sir. उल्टा सोचने के लिए मतलब कि अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके सारे एंगल्स इसके बराबर और इस ट्रायंगल के सारे साइड्स इसके बराबर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. इसमें कहा गया कि एंगल A जो है वो एंगल R के इक्वल है, राइट? एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल है, राइट? तो अगर मैंने ये कहा कि ABC is congruent to triangle PRQ, क्या मैंने बोल दिया? Is congruent to angle B. PRQ. Is it the correct sentence I have written? No, sir. Why no? What is the reason? ट्रायंगल PRQ, इसको तो ट्रायंगल PRQ बुला सकते हैं हम तो, या नहीं बुला? What happened with my pen?
एक सेकंड गाइस, shouldn't it be RQP? मेरा क्वेश्चन वही है कि हम इस ट्रायंगल को क्या पी आर क्यू नहीं बुला सकते? Sir, I think it will be called RQP सना, instead. एक मिनट रुक जाओ सना, इसको हम पी आर क्यू नहीं बुला सकते क्या इस ट्रायंगल को? बोलो बोलो, ट्रायंगल को तो बुला सकते हैं ना नाम से, पी आर क्यू बोल दो। एंगल बुला सकते हैं लेकिन एंगल को नहीं बुला सकते। एंगल को नहीं बुला सकते हैं? ये कहाँ से आ गया? ये तो नया ट्रायंगल बुला सकते नया लॉजिक। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको सिंपल ट्रायंगल की नेमिंग करनी है, सिर्फ एक ट्रायंगल की नेमिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, इफ यू हैव टू डू नेमिंग्स फॉर अ सिंगल ट्रायंगल, तो आप नेमिंग कुछ भी कर लो, पी आर क्यू बोल लो, आर पी क्यू बोल लो, आर क्यू पी बोल लो, जो मन करे बोलो। बट इफ यू आर डूइंग कॉन्ग्रुएंट, इफ यू आर डूइंग कॉन्ग्रुएंट, सो इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। इफ आई सेज दैट एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू, इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूं अभी। The reason behind it is the A is equal to P. क्या A P के इक्वल है क्या? चेक करो, एंगल A R के इक्वल है, P के No. इक्वल नहीं है, राइट? एंगल B चेक करो, B किसके इक्वल है? B R के इक्वल है क्या? नहीं है, रॉन्ग। तो मैंने तो यहाँ तीनों लिख दिया, एक भी रॉन्ग हुआ ना तो आप नहीं लिख सकते। सो दैट मीन्स इफ आई वांट टू राइट इट डाउन, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू विच वन, तो ए के लिए कौन इक्वल है? आर, तो आप लिखोगे यहाँ आर। बी का इक्वल कौन है? तो बी का इक्वल क्यू है जी, तो आप लिखोगे क्यू। और सी का इक्वल कौन है? तो सी का इक्वल पी। सो दिस वन इज द करेक्ट। So do you understand the difference in naming of the congruent triangles? Yes, Sana? sir. Sana? यस सर। नेमिंग्स में ध्यान देना है, कॉन्ग्रुएंट में। आप ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल्स को तो कुछ भी नाम से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में देखो, ऊपर का भी मैंने वही ट्रायंगल का नाम लिखा है, लेकिन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ए पी के इक्वल नहीं था। आना चाहिए था सिंस देयर इज बी ओवर देयर। राइट, करेक्ट। यस सर। तो जिसके कारण ये ए पी भी जो है वो भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ए आर के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी पी के इक्वल है। दैट्स व्हाई वी कैन से एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो और नोट भी कर लो इस चीज को। Yes, sir. जो मैंने ये ऊपर दोनों बनाया है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको नोट भी कर लो। और इसके भी नीचे अपने लैंग्वेज में लिखो, मेरे लैंग्वेज में नहीं, इसके नीचे अपने लैंग्वेज में लिखो कि ये रॉन्ग क्यों हो गया। नोट इट डाउन। I've written it. I'll just write why it is wrong. डन गाइस? Yes, sir. Yes sir, done. ओके, फाइन। ओके, हाँ, ट्रायंगल पोर्शन से हमें मिल गया है प्रूफ ऑफ थ्योरम डिलीटेड, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी। ओके, देखो जी, ये नोट कर लो अपने पास, ये पोर्शन डिलीट है आपके उससे। जस्ट The one हाँ,
The one you just taught. नो 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 नो, टॉट नहीं, Yes. डॉट वाला बात नहीं आया है, मैं बस दिखा रहा हूँ क्या डिलीट किया है, तो आप मुझे रिमाइंड भी कर देना अगर मैं भूल गया पढ़ाते पढ़ाते। तो पहला चीज है प्रूफ ऑफ थ्योरम डिलीटेड, two triangles are congruent if any two angles and included side of, मतलब two angles a, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा रूल है ये, two angles and included side, ओके इस ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और दूसरा है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, रिलेशन एंड फेसिंग, ठीक है चलो कोई नहीं, तो हम ये नहीं करेंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट का नेम हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। Yes. ओके, अब देखो बात आती है कॉन्ग्रुएंसी जब आप करते हो तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, इसमें क्या है, कुछ Yeah. थ्योरम्स हैं। व्हाट आर द थ्योरम्स, सो ज्यादा नहीं है, 4-5 थ्योरम्स ही रहते हैं, एंड दैट्स we called it as a criteria. What we called? Criteria. ठीक है, what are the criteria, I will just let you know. So basically आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, those are the criteria, you can say SAS, okay, Yes. AAS, AAS, उसका ट्रिपल एस एंड दैट्स RHS। ये क्राइटेरियाज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये Yes. क्राइटेरिया क्या है, these we called criteria, these we call what, Criteria. criteria based on we prove, based on we prove triangles are triangles are congruent। कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, इसका मतलब हो गया एंगल, व्हाट हैपनिंग विद माय पेन, एंगल एंगल साइड, व्हाट इट्स ओके, एंगल एंगल साइड, इसका मतलब हो गया साइड साइड साइड, right angle hypotenuse side। ये 4 क्राइटेरिया जो है फिलहाल आपको पढ़ना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसको कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, ऑल थिंग्स आई विल लेट यू नो वन बाय वन, ओके। Yes. तो यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने गाइस? Just 1 second. ओके, Yes, sir. नोट हो गया है? Just a minute. Done, sir. ओके ठीक है, आप मुझे एक सेकेंड, या टेल मी। Sir, done. ओके, आप मुझे बस एक सेकेंड दो। जस्ट 1 second, टेलिंग यू समथिंग मोर इन दिस। Okay guys,
So I'm just going to let you know in this. सारे क्राइटेरियाज नोट हो गए? Yes, sir. चलो अब हम पढ़ते हैं पहला क्राइटेरिया, और यू कैन से द फर्स्ट रूल. ओके, आई एम अपलोडिंग द रूल. Can you see the rule? Yes, sir. Why do we call it axiom? So what does axiom mean? Axiom means जो थ्योरम बन के आता है, the rule बन के आता है, उसे हम axiom कहते हैं. Okay, sir. ओके, तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना हमें. नोट करो पहले पूरा सेंटेंस. Yes, sir. Just a minute. Sit down. डन. So 1 minute. नोट हो गया गाइस? So Yes. was line. ओके, Done, sir. या आई एम लिसनिंग यू, गिव मी सेकंड. अब देखो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Two triangles are congruent if two sides and included angle. तो two side मतलब दो साइड हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा. उसके बिहाफ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, राइट? तो अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम प्रूविंग कैसे करते हैं? लेट्स टेल यू. प्रूव ऑफ, यू कैन से द प्रूव ऑफ थ्योरम. ओके, सो प्रूव ऑफ थ्योरम करने से पहले हमें कुछ गिवन डेटा लेना पड़ता है. हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं हम? जो ये थ्योरम हमने ऊपर लिखा है कि टू साइडेड एंड इंक्लूडेड एंगल्स of one triangle is equal to the side and the included angle of the other triangle, right? हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं. तो प्रूव करने के लिए हमें कितने ट्रायंगल्स चाहिए? दो ट्रायंगल्स चाहिए. तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया है, राइट? और ये भी कंडीशन ले ली कि AB जो है this side is equal to this side, right? And second thing we have taken this side is equal to this side, and third condition already we have taken that these angles are equal. एक चीज मैं बता दूं, SAS अगर कहते हैं तो मान लो कि आप, कैन यू हियर मी गाइस? Yes, sir. अगर मान लो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, बुक में लिखी हुई नहीं है. किसी ने बोला SAS, तो मान लो कि आपने ये साइड पहले लिया, तो इस साइड के बाद कौन एंगल आएगा? ये एंगल आएगा, राइट? एंड देन ये साइड आएगा. मतलब कंटिन्यूअस वाला. ऐसा नहीं कि आपने ये साइड पकड़ लिया, ये एंगल पकड़ लिया
फिर ये साइड पकड़ लिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। बात को मेरी समझ में आ रही है? अगर कोई चीज किसी ने बोला कि जो भी थ्योरम यहाँ पे बोला जाएगा दैट शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब उसके बाद वो आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये पकड़ा फिर ये एंगल ले लिया और ये साइड पकड़ लो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इस एंगल के बाद कौन साइड आएगा? अगर मैं लेना भी चाहूँ तो कौन सा साइड आना चाहिए? बीसी आना चाहिए, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अगर ऐसे मैंने बोला तो साइड एंगल साइड और तीनों कंटिन्यूअस में है, तो कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस में नहीं है तो आप यू कैन नॉट टेक इट, कोई दूसरा रूल लगाओगे। क्लियर है? Yes, sir. अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट। दिस इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। सो मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं बहुत आसानी से आप लोगों को ये प्रूफ देता हूं और आपको एग्जैक्टली यही चीज लिखनी भी है। ओके? Okay, sir. सो आप एक काम करो, ये पूरा नोट डाउन करना है। यस, अगर ये थ्योरम कोई बोलता है कि ऐसे थ्योरम प्रूव करो, क्या बोलता है? ऐसे थ्योरम प्रूव करो, तो पहले तो थ्योरम लिखना है, फिर गिवन डेटा, फिर क्या प्रूव करना है वो लिखना पड़ेगा, राइट? And then we will write down in the proof that place ABC triangle इसके ऊपर उठा के रख दो, तो AD पर फॉल करेगा एंड AB जो है DE पे फॉल करेगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे फॉल करने लगे तो इसका मतलब हो गया कि AB DE के इक्वल और एंगल AD के इक्वल रहेगा, राइट? So C will also fall it, so hence we can say BC will coincide with EF, ये इसके साथ coincide कर जाएगा, राइट? मतलब कहने का मतलब कि हमने उठा के इसको यहाँ रख दिया, ये एंगल इक्वल हो गए, ए बी साइड इज इक्वल टू डी, सो सी जो है वो एफ के साथ भी मैच कर जाएगा, राइट? एंड ए सी विल कोइंसाइड विद डी एफ एंड बी सी विल कोइंसाइड विद ई एफ, हेंस वी कैन से, आप नोट करो यहां तक, hence we can say ABC coincide with DEF, so ABC is congruent to DEF। आपको एग्जैक्टली यही लिखना है और कुछ नहीं करना। प्रूफ में क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं गाइस, क्वेश्चन सॉल्विंग में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, ये प्रूफ है कि हाँ ऐसे नाम का कोई थ्योरम होता है, वो बता रहे हैं अभी हम। नोट हुआ यहाँ तक? Nice, sir. Just a second. ओके, जल्दी नोट करो। But it's very long. Sir, I'm done. Okay, fine, just wait।
Done, guys? No, sir. Yes, sir. Okay. So done. Done? Okay. अब देखो इसमें ये तो हो गया. अब मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं. ओके. आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम गाइस, और इसमें आप लोग थोड़ा मेहनत करना गाइस. मैं पहले बता रहा हूँ सभी बच्चों को दिक्कत आती है. यू विल ऑल्सो फेस. ठीक है. सो मेहनत जरूरी है. क्या है, इसलिए मैं स्लो भी चलूंगा यहाँ. मैं फास्ट नहीं भागूंगा. आप लोग को जितना टाइम चाहिए आप लोग लेना, लेकिन चीजों को समझना. ठीक है. अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा, SAS थ्योरम. क्या पढ़ा अभी हमने? SAS थ्योरम. अच्छा, उस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो कैन यू टेल मी, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? The angles opposite to two equal sides of a triangle are equal. To prove the angle opposite to two equal side of a triangle are equal. ये स्टेटमेंट दिया है, हमें इसको प्रूव करना है. सो सना आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट किस ट्रायंगल के बारे में है? The angle opposite to two equal sides of a triangle. Isosceles. Yes. Okay. It is isosceles triangle. Okay. So give me a second. First of all, I will draw the isosceles triangle for you. So guys, this is isosceles triangle I have drawn. किसी कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके. सो ऑलरेडी ये एक क्वेश्चन में बस यही लिखा है कि एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. हमको ये प्रूव करना है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि हमको गिवन में कुछ लेना पड़ेगा. तो गिवन में हमने क्या ले लिया? गिवन में हमने क्या ले लिया? दैट ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल, राइट? सो मैं इसको ABC, और स्टेटमेंट से ही मालूम चल गया टू इक्वल साइड है, तो हम मान लेते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC. कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. हाँ? I mean, no. नो. व्हाट वी हैव टू प्रूव देन? हमको क्या प्रूव करना है? कि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे. हमको ये प्रूव करना है, राइट? सो टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हमको जी ये प्रूव करना है.
किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। अब देखो हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी करनी है, तो सिंगल ट्रायंगल से पॉसिबल है क्या? सिंगल ट्रायंगल से पॉसिबल है क्या? So we need to check with another one. We have to another triangle. We need another triangle, right? So what we will do here, we will draw a bisector. We will draw a bisector. Give me a second. मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ so you can see it properly, और इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ये दिखेगा भी properly. Now can you see what I am talking? I will draw a bisector, angle bisector. What I did? Angle bisector of A, which lies on BCD, right? So construction में क्या करेंगे? AD is a angle bisector of angle A. Clear है? Yes sir. Okay, अब चलो प्रूव करते हैं. प्रूफ. तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए जी? 2 ट्रायंगल हो गए. एक ट्रायंगल हो गया ADB, राइट, एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास ADC. कोई प्रॉब्लम है? No sir. अब देखो इसमें बता रखा है ऑलरेडी, हमारे पास स्टेटमेंट है कि AB इज इक्वल टू AC, मतलब AB इस ट्रायंगल का जो है वो AC के बराबर है. कोई प्रॉब्लम? No sir. अच्छा, कैन आई ऑल्सो राइट एंगल BAD is equals to angle CAD? Can I say that? Yes sir. Sana, can I say this angle is equal to this angle? क्योंकि हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, right? Yes, sir. Okay, and now do you know AD and AD is the common for both the triangles? AD side. Can you see that? Can you see that, guys? Yes sir. तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया. तो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से देखो, साइड हो गया, एंगल हो गया जी, साइड हो गया, और कंटिन्यूअस में है, राइट? सो वी हैव प्रूव्ड नाउ. अब मैंने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC. अब क्या है कि by which criteria? By SAS criteria. किस क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया है? बाय SAS क्राइटेरिया. अब जैसे ही हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने का मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा. Am I right? Yes sir. So we can also write angle B will equal to angle C, and we can also say BD will be equals to CD or DC, whatever, CD you can say. तो ये दोनों क्राइटेरिया पूरी हो जाएंगी Yes sir. बाय CPCT. CPCT का ओके, ये करो फिर मैं फुल फॉर्म लिखाऊंगा. सना, क्लियर हुआ कैसे हम प्रूव करेंगे? Yes, sir. पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मतलब सब साइड सब एंगल सब इक्वल, तो उसका लिख दो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो इस पूरे चीज को जरा नोट डाउन करो, एंड दिस इज VVI क्वेश्चन. दिस इज व्हाट क्वेश्चन? VVI क्वेश्चन. अगर समझने में कहीं कुछ डाउट है तो मुझे दोबारा भी पूछो, आई विल एक्सप्लेन. So, I'm writing it once and then I will read it. ओके, So, I will ask you. चलो चलो चलो, नोट करो जल्दी से, नोट Sir, करो. give it up again one more time just to tell us. ओके, मैं फिर से बताऊं? Yes. ओके, चलो मैं फिर से बताता हूँ. देखो गाइस, क्वेश्चन कहता ये है कि एंगल अपोजिट टू टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, राइट? तो हमने एक ट्रायंगल लिया और टू साइड्स इक्वल बोल दिया, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, करेक्ट? Yes. तो हमने पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया था जिसके दो साइड्स इक्वल कर लिए. हमको उसे प्रूव क्या करना था
कि दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है, क्योंकि हमने माना नहीं था कि ये आइसोसेलेस में ये है होता है, हमें प्रूफ करना था। अब बात आती ये है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं बना सकते ना हम। कॉन्ग्रुएंसी बनाने के लिए कितने ट्रायंगल चाहिए? मिनिमम 2 ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, तो हमने एक जी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, एंगल ए पर एडी एज अ बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सो यू आर गेटिंग वन ट्रायंगल हियर एंड यू आर गेटिंग अनदर ट्रायंगल हियर। 2 ट्रायंगल्स मिल गए आपको। एंड व्हाट आर द नेम्स? ए डी बी एंड ए डी सी। 2 ट्रायंगल्स आपको मिल गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप अलग अलग कट करके देखोगे, मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप अगर दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कट करके भी देखना चाहते हो ना, तो आप ऐसे देख सकते हो। गिव मी अ सेकेंड। एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ओके, और एक ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा गाइस। मैं वापस से यहाँ, यस, ये हो जाएगा ए डी बी और ये हो जाएगा ए डी सी। मैंने पलट दिया दोनों को, ठीक है। अब देखो, इसमें ऑलरेडी बोल रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोल दिया है गाइस। यस सर। एंगल ए और ये वाला एंगल ए, तो बी ए डी, क्योंकि बाइसेक्टर हमने लिया था, डू यू रिमेम्बर दैट? यस सर। और दोनों में ये ए डी साइड कॉमन आ रहा है। देखो मैंने अलग अलग फिगर इसलिए बनाया अभी आपके लिए। एडी साइड इक्वल सिमिलर आ रहा है गाइस, कैन यू सी दैट? कॉमन एक ही पे बेस्ड है, राइट? सो अब देखो, साइड एंगल साइड, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को ADB is congruent to ADC बोल सकते हो। by which criteria? by SS criteria। सना, do you clear? Yes, sir. अब जब ये हो गया जी कि अब ये इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। Yes. और ये साइड भी आप इसके इक्वल बोल सकते हो, ये एंगल भी आप इसके इक्वल बोल सकते हो ना। Yes, sir. जब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सब इक्वल हो गए। सो दैट्स आई हैव डन हियर। इज दैट क्लियर? यस सर। वो मैंने फिगर को अलग अलग तोड़ के दिखा दिया आप लोगों को, बट लिखते ऐसे हैं, करते ऐसे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ बोलिए बोलिए। So why didn't you send the test yesterday for homework? Oh, sorry. I forget to send. Okay, तुझे आज आपको मिल जाएगा। Okay, मैं भूल गया था, मैं भूल गया हूँ। So what is CPCT? CPCT is नोट कीजिए, corresponding parts। CPCT का मैं लिख भी देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। सर मेरे को पता है पर मैं भूल गई। कोई बात नहीं। CPCT means corresponding P for parts, C for congruent, and T for triangle। corresponding parts of, आप ऐसे बोल सकते हो, corresponding parts of congruent triangle। Clear है guys? Yeah. Okay, so right now I will end the session. I have to join again another one. Okay, so we will meet in the next time. Okay, और आज evening तक मैं भेज दूंगा। Clear? Yes, sir. Okay, sir. So can you like just explain CPCT? I didn't understand CPCT, man. CPCT का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया था क्राइटेरिया SAS। Yeah. So since these angles are divided into two, so they are same. They're the corresponding. नहीं, इसके बेसिस पे आपने बोला कि ये और ये इक्वल होंगे। CPCT का मतलब हो गया corresponding parts of congruent triangle। आपने पहले congruency प्रूफ कर दी, congruent triangle बोल दिया, राइट? और congruent triangle बोलने के बाद आप कह रहे हो जी कि B और C और इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि corresponding parts जो है congruent triangle के, उसके बेसिस पे आपने कहा कि B और C इक्वल है, अपने मन से नहीं कहा। Yes, sir. Thank you, sir. Got it. Okay, चलिए, we will meet in the next session. Okay, Bye. okay, bye.